multiple integral. Under the heading of multiple integral, yesterday we have started change the order of integration, and we have discussed in the yesterday's class a few examples related to the change of order of integration. So let us continue with the same and do some more questions, more important questions related to change of order of integration. So the first question we are going to discuss, you need to evaluate 0 to 1 and 0 to under root of 1 minus x square y square dy dx. You need to evaluate this double integral by changing the order of integration. Now the given integral can be named as I, and in this integral we have limits. What are the limits? These are the limits in terms of variables. 0 to 1 minus x square root. So clearly these are the limits of y. Y is equal to 0 and y is equal to 1 minus x square. And these are the limits of x. X equal to 0 and x equal to 1. Now, if we see from this, we will get y square is equal to 1 minus x square, or x square plus y square equal to 1. So after seeing this, we will get the equation of a circle. So this is the equation of a circle we have. So this is x-axis and this is the y-axis. This is the origin point. Now, if we see this double integral, in this double integral, both the lower limits are 0. What does it mean? It means that जो हमारा इंटीग्रेशन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये इसका मीनिंग है. तो इसका मतलब अब हमने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यू नो दैट वी नीड द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड द लिमिट्स ऑफ वाई. बट अगर हम गिवन को देखें तो वाई का लिमिट वेरिएबल में है. जस्ट सी the limit of y is in terms of variable. So it means the given region of integration, given region is R. It is xy such that y varies from 0 to square root of 1 minus x square, and x varies from 0 to 1. This is given region of integration. New region of integration will be named as r dash. और r dash में हमें क्या करना है? y का लिमिट x में था, अब हम x का लिमिट y में करेंगे. वो तभी होएगा चेंज ऑफ ऑर्डर. सो लोअर लिमिट विल बी 0 and upper limit will be 1 minus y square, and what will be the limits of y? That will be 0 to 1. This is the changing of order of integration. तो y की लिमिट के लिए हम लोग डाउन टू अप जाते हैं और x की लिमिट के लिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं. तो नाउ यू कैन इवैल्यूएट. Therefore I will be equal to the new limits are 0 to under root of 1 minus y square and 0 to 1. This is y square dx dy. अब हमने क्योंकि x का लिमिट y में कर दिया है, तो we need to integrate it with respect to x. So these are the limits. Limits are 0 to under root 1 minus y square dy. जिसका लिमिट वेरिएबल में है उसी से पहले इंटीग्रेट करना है. तो dx से इंटीग्रेट हो गया x, y स्क्वायर वहां एज इट इज आ जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स. दैट विल बी y स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर dy. ये आ जाता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल. बी वेरी केयरफुल. इसको जरा ध्यान से देखिएगा. We shall use a substitution. Put y is equal to sine theta, dy is equal to cos of theta d theta, and the limits will be when y is equal to 0, sine theta 0,
साइन थीटा 0 कब होता है? 0 पर होता है, तो थीटा की लिमिट आ गया 0. सो पुट y इक्वल टू 1 हियर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1. साइन थीटा 1 कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. So these are the limits. Put the value of y, that is sine square theta, and under 1 minus sine square theta cos of theta d theta. Ultimately, you should have 0 to pi by 2 sine square theta and cos square theta d theta. थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर ही आ जाता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके पास लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 हो, तो वी शैल यूज रिडक्शन फार्मूला स्ट्रेट अवे. रिडक्शन फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट in definite integral. What does it mean? Limit 0 to pi by 2 हो, be very careful. लिमिट 0 टू पाई बाय 2 हो और पावर्स हो, साइन का पावर हो और कॉस का पावर हो, या अकेला फंक्शन भी हो सकता है, अकेला साइन भी हो सकता है, अकेला कॉस भी हो सकता है. तो यहाँ पर दोनों है तो हम दोनों से चलेंगे. अब इसका मतलब क्या है? पावर इज 2. सो ध्यान से समझिए, 2 माइनस 1 इज 1. ओके, एंड यहां भी पावर है 2. 2 माइनस 1 इज 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, दैट इज 4. 4 से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे 2 2 माइनस करके, 4 इंटू 2, और 2 में और 2 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा. 0 नहीं लेना कभी भी. सो दिस इज बाय रिडक्शन फार्मूला. मैं इसको थोड़ा एग्जांपल दे करके यहाँ पर भी करता हूँ. सपोज वी हैव साइन रेज टू पावर 8 थीटा ओनली. सो बाय रिडक्शन फार्मूला, that is 8 minus 1 is 7. 7 5 3 1, और डिनोमिनेटर में 8 6 4 एंड 2. डिनोमिनेटर में माइनस करके नहीं चलना, न्यूमरेटर में ही -1 करना है. और क्योंकि ये पावर इवन था, जब इवन पावर हो तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज द वैल्यू बाय रिडक्शन फॉर्मूला. इसको आप थोड़ा कैंसलेशन कर, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल करिए और फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं. और अगर हमारे पास कॉस रेज टू पावर 8 थीटा होता तब भी यही वैल्यू आना था, क्योंकि साइन और कॉस बदलने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा पावर के चेंज होने से. सो पावर चेंज हो जाएगा तो आंसर में भी चेंज हो जाएगा. लेकिन पाई बाय 2 तभी आएगा अगर पावर इवन है. अगर पावर इवन नहीं है तो पाई बाय 2 नहीं लिखेंगे आप. ओके, सिमिलरली वी विल हैव another example. Suppose we have sine 8 theta and cos 6 theta d theta. So 8 minus 1 is 7 5 3 1, and 6 minus 1 is 5 3 1. इंटू करते जाना आपने नीचे. 8 plus 6 is 14. 14 12 10 8 6 4 and 2. और यूं के पावर्स दोनों इवन हैं. अगर दोनों इवन पावर्स हैं तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर एक भी पावर इवन ना हो तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. सर एक बार फिर से बताइए सर. वो 7. हाँ जी, नहीं समझ में आया सर. 7 into 5 into 3 वाला सर. कुछ भी नहीं समझना है. 8 में से 1 माइनस करके आपने चल पड़ना है सफर पर. 8 minus 1 is 7. दिस इज द प्रोसीजर इन रिडक्शन फार्मूला. रिडक्शन फार्मूला के बैक एंड में काफी सारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स. दिस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन फार्मूला. 8 minus 1 is 7. ओके, और देन 2 2 माइनस करके चलना है. 7 minus 2 is 5. 5 minus 2 is 3. 3 minus 2 is 1. This is meaning. 6 minus 1 is 5. Then 5 3 1. ओके ओके सर. और डिनोमिनेटर में टोटल करके 8 plus 6 is 14.
14, 12, 10, 8। और पाई बाय 2 से कब मल्टीप्लाई करना है? जब इवन हो, दोनों इवन चाहिए, इवन पार्स चाहिए। अब अगर एक यहाँ पर इवन और दोनों एक इवन ऑड पार्स, रहा तो सर? अगर इवन, मैं कह रहा हूं दोनों इवन पावर चाहिए, उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि जब दोनों इवन होंगी तभी पाई बाय 2 से करेंगे। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है इसमें? यस सर। तो फिर क्वेश्चन ऐसा पूछते क्यों आप? मेरा सुन नहीं रहे आप? यस सर, सुन रहे सर। मैं बोल रहा हूँ दोनों इवन पावर चाहिए पाई बाय 2 लगाने के लिए। इसका मीनिंग क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर एक भी इवन ना हुआ फिर पाई बाय 2 लगाएंगे? नो सर। देन इट्स ओके। दोनों इवन है, यहां भी 2 और 2 इवन होता है, और इट मीन पाई बाय 2 लगाएंगे। So what it be? That will be pi upon 60. This is your correct evaluation of this question. So this is the direct application of reduction formula. So let us continue with one more example. This is I think so. This is not done earlier. This is another important example. The question is evaluate 0 to 4a and x square upon 4a to 2 square root ax dy dx। इसको इवेल्युएट करेंगे आप लोग, इवेल्युएट, बट इवेल्युएट करेंगे बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके ओके। यस सर। अंजलि रानी इज प्रेजेंट? यस सर। तो बेटे आप भी आवाज दीजिए करिए जब ओके पूछा जाता है ना, ऐसे मन में मेरे आता है कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ओके। ओके सर। हाँ, अब आप ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें, सबसे पहले लिमिट को ऑब्जर्व करिए, वेरिएबल वाले लिमिट को सबसे पहले ऑब्जर्व करो। दीज आर द लिमिट्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, एक्स में दी हुई लिमिट्स हैं, इसका मतलब ये वाई की लिमिट्स हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a एंड y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ए एक्स, ये वेरिएबल वाला लिमिट हो गया। इसका मतलब बाकी जो दो लिमिट बच गई हैं 0 to 4a वो x की हैं, x is 0 and x is equal to 4a. Is it clear to us? This is very much clear. So from this equation x square is equal to 4ay, and from this equation y square is equal to 4ax, squaring करके। और what are these? These are parabolas. So plot these parabolas here. First parabola x square equal to 4ay, upward parabola, x square equal to 4ay, y square equal to 4ax, right-handed parabola, y square equal to 4ax. And this is the region of integration we have. These are the points of intersection A, and this is origin. Origin के कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही रहते हैं, वो हम लोग फाइंड भी कर लेंगे। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस and this is x axis. X equal to 4a, 4a mean this point, this is line, this is x equal to 4a. So it is clear that this point is 4a0 और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी 4a ही है। ओके, इस इक्वेशन ऑफ लाइन से हमें पता चल जाता है। और वैसे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y का वैल्यू पुट करिए, द वैल्यू ऑफ y इज 2 स्क्वायर रूट a x, so x square is equal to 8a square root a x. This is the variable actually, so you can put it here. And what is this? Ultimately what we want to do, we want to find out the value of x. So let us see, 4ay, हम इसको दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं।
आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इजी करना चाहिए। इजी करने के लिए y का वैल्यू, यस, आप एक काम करिए, इसको यूज करिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और y का वैल्यू यहां से दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर 4a होल स्क्वायर। इजी करना है हमने, ऐसे नहीं करिए, इससे इजीली इवेल्युएट हो रहा है। दैट इज x4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दैट इज x4 is equal to 64a cube x, and x can be taken common. X cube minus 64a cube is equal to 0. So x की वैल्यू 0 और x कम आउट टू बी 4a, यहां से, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला से। सो व्हेन x इज 0, जस्ट सी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहां से जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 4a, so 4a into 4a will be 16a square, और y का वैल्यू 4a. So this is the point of intersection, 4a 4a this one, और 0 0 this one. Okay, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाते हैं। नाउ अंडर दिस we have to evaluate and find out the new region of integration. So दोनों स्ट्राइप बनाने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल x की लिमिट के लिए होता है, वर्टिकल y का लिमिट के लिए होता है। और न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को आप लोग r' नाम दे दें। और अगर हम लिमिट्स को ध्यान से देखें जो गिवन है, वो y का लिमिट वेरिएबल में है, x में। अब हम क्या करेंगे, x का लिमिट y में निकालेंगे, एंड फॉर द लिमिट ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो x वेरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान से समझिएगा। तो लेफ्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी करता है। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू, व्हाट इज द पॉइंट, ये पॉइंट इस पैराबोला पर है, राइट हैंडेड पर, और राइट हैंडेड पैराबोला ये है। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो y स्क्वायर ओवर 4a, so this will be the lower limit, and at this point this is the upward parabola we have, and for upward parabola the limit of y, the limit of x will be 2 square root ay. So these are the limits of x, and for the limits of y, now y की लिमिट फिर कांस्टेंट में आएगी 0 to 4a. So these are the limits of y. So this is the new region of integration we have. Therefore I can be evaluated by using these limits. These are the limits which we have got by applying change the order of integration. Now you can integrate, क्योंकि x का लिमिट y में दिया है, तो x से पहले इंटीग्रेट होएगा x, इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट्स y स्क्वायर अपॉन 4a टू, this is lower limit, y square upon 4a to 2 square root ay dy. Now put the limits. For upper limit 2 square root ay minus y square upon 4a. ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आ जाता है। नाउ अब हम y से इंटीग्रेट करेंगे, 2 स्क्वायर रूट a, यहाँ y का पावर है 1/2, तो y का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होएगा 3/2 ओवर 3/2, और यहाँ पर y क्यूब अपॉन 3 4s are 12a, and limits are 0 to 4a. Now you can substitute the limits, and 3/2 जो नीचे है इसको जब आप ऊपर लेकर के जाएंगे वो बन जाएगा 4/3 स्क्वायर रूट a, 4a रेज टू पावर 3/2 माइनस 4a रेज टू पावर 3 अपॉन 12a,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर आता है 2 4/3 स्क्वायर रूट ए। अब इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे। एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि ए की पावर तो 3/2 ही है, यहाँ पर ए की पावर 3/2 और 4 की पावर 3/2 को आप सिंप्लीफाई कर देंगे 2 रेज टू पावर 3/2, 2 कैंसल और 2 का क्यूब वो 8 होता है और 4 का क्यूब 64 ए क्यूब अपॉन 12 ए। नाउ again 8 4s are 32 upon 3 a raised to power 3/2 और a raised to power 1/2 कितना बना a पावर 2। सिंप्लीफाई करने के बाद यहां भी पावर 2 बना, यहां पर 3 कटा, यहां पर 8 आया, सो 8 अपॉन sorry this come out to be 16 you will get 16 क्योंकि 16 4s are 64 है, so 16 upon 3 a square. It is clear now, that is 16 upon 3 a square. This is your resultant. This is the final result we have. So I think it is clear to you. Yes, sir. Yes, sir. So be very careful while you are evaluating or doing the questions of change the order of integration. अच्छा, वो इनफाइनाइट स्ट्राइप में भी आ जाता है, वो देखिए कैसे, जब आपके पास लिमिट्स इनफाइनाइट में हो, द क्वेश्चन इज इवेल्युएट I is equal to 0 to infinity, x to infinity, e raised to power minus y over y dy dx. Now you need to evaluate. अब जो गिवन है वो लिमिट्स को देखिए ध्यान से। This is your given region of integration R in which y varies from x to infinity. These are the limits of y, or 0 to infinity are the limits of x. You can plot the figure. This is x-axis and this is y-axis. We have x equal to y. X equal to y is a line which is passing through the origin at an angle of 45. So this is the origin point, and y is equal to infinity. Y is equal to infinity mean this is y-axis. Y equal to infinity mean y-axis. So it is going to this side, y-axis. आप ऐसा एरो बना करके दिखा सकते हैं ऊपर की तरफ। What is x equal to 0? X equal to 0 आपके पास है y-axis, y equal to infinity. y equal to infinity, sorry, y equal to जो infinity line है वो ये होगा like this. So it is going to this side infinite. Okay, this is the line y equal to infinity, और ये इस तरफ भी जाएगा और उस तरफ भी जाएगा, ये फिक्स नहीं है वो किस तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी का मतलब है कि इन्फिनिट लाइन है, और x इक्वल टू 0 का मतलब ये लाइन है y एक्सिस, एंड दिस इज y इक्वल टू x, ये लिखा भी है। एंड व्हाट अबाउट दिस x इक्वल टू इन्फिनिटी मीन y, यही x एक्सिस, ये इन्फिनिटी को तो जा ही रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, x इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं, that will be like this. x equal to infinity मतलब इन्फिनिट पर हम उसको प्लॉट करेंगे, ये इसका मीनिंग है। ये जो हमने प्लॉट करा है ये इन्फिनिट पर प्लॉट होना चाहिए था। व्हाट आई वांट टू से, इसको आप यहां दिखाइए नहीं, ध्यान से समझिए जरा, मैं इसको दोबारा आपको बताता हूं।
क्योंकि अगर हम इसको प्लॉट करके दिखा देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यही है पॉइंट, पर ये पॉइंट नहीं है। देखिए, अगर y इक्वल टू 2 होता तो वो 2 कहीं फिक्स पॉइंट पर जाकर के प्लॉट होना था। जैसे ये सपोज 1 है तो ये पॉइंट 2 है, तो ऐसे प्लॉट हो जाना था y इक्वल टू 2। और अगर y इक्वल टू 3 होता तो फिर कहीं जाकर के प्लॉट हो जाना था ऐसे। बट ये y इक्वल टू इंफिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब ये जो लाइन है इनफाइनाइटली बढ़ रही है आगे, और इनफाइनाइट पॉइंट पर है वो लाइन y इक्वल टू इंफिनिटी, जबकि इनफाइनाइट पॉइंट को हम शो नहीं कर सकते, इसलिए बेटर रहेगा हम इसको ओपन रखें। ऐसे ही x इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब है, सपोज ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, तो x इक्वल टू 1 यहाँ होगा, x इक्वल टू 2 यहाँ लाइन प्लॉट होएगा, x इक्वल टू 3 भी होएगा, और x इक्वल टू इंफिनिटी इन्फिनिट पर जाकर के कहीं प्लॉट होएगा, बट हम उसको दिखा नहीं सकते। इज इट ओके? Yes, sir. So this is the meaning. क्योंकि तो इनफाइनाइट पर तो हम दिखा नहीं, अगर मैं यहाँ प्लॉट करके दे देता हूं तो यहाँ फिर मुझे बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट इनफाइनाइट है, जबकि ये है नहीं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट को आप प्लॉट करके दिखा नहीं पाएंगे। अप टू इनफाइनाइट जब जाएगा वहां वो x इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन है। तो अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन तो ओपन है, ये देखिए दिस वन इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है, तो इसमें हमें लिमिट्स फाइंड करना पड़ेगा। लिमिट्स के लिए यू नो दैट हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप और वर्टिकल स्ट्राइप, और आप ये भी जानते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है x का लिमिट के लिए, एंड वर्टिकल स्ट्राइप इज फॉर द लिमिट्स ऑफ y। so for this we have to find out the new region of integration r dash। अब हमें y का लिमिट x में दिया था, देखो जरा, अब हमें x का लिमिट चाहिए, x का लोअर लिमिट भी चाहिए और अपर लिमिट भी चाहिए। सो क्लियरली we need to find out the limits of x, and x varies from left to right. So at this point x is equal to 0, and at this point x is equal to y. And what about the limits of y? अब y का लिमिट कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, एंड y वेरीज फ्रॉम लो टू अप। सो डाउन टू अप जब मूव करेंगे, एट दिस पॉइंट y इज क्लियरली 0, एंड अप मीन इट इज गोइंग इनफाइनाइटली, सो अपर लिमिट इज infinity. So under these limits we need to integrate. Therefore I is equal to 0 to infinity and 0 to y e raised to power minus y over y dx. This is dx dy. Now you need to integrate with respect to x first. So e raised to power minus y over y into x. Limits are 0 to y dy. So 0 to infinity e raised to power minus y over y. This is y dy, और ये y इसके साथ कैंसिल हो जाता है, एंड दिस कम आउट टू बी e raised to power minus y, और e raised to power minus y का इंटीग्रेशन होएगा e raised to power minus y over minus 1. So minus 1 is out. तो माइनस साइन को आप बाहर रख सकते हैं। सो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी एंड ई रेज टू पावर माइनस 0, एंड माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, एंड दिस इज 1 बिकॉज ई रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और बिकॉज ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0. So ultimate value come out to be 1. So this is the true value of this question. This is the final resultant of the given statement. So this is by changing the order of integration. So you will do all the questions by the given original region of integration also. जो भी आज क्वेश्चन करे हैं और जो भी हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन करे थे, उनको जितना भी गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उससे भी इवैल्यूएट करके आप लोगों ने एज ए प्रैक्टिस करना है। और यू विल सी दैट
आपका जो फाइनल एवेल्युएशन होएगा उसका वैल्यू भी यही आएगा, 1 ही आएगा इस केस में। तो आई कंक्लूड माई क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.